Once again, welcome to you all, my dear students. Today, I will teach you class 9th English Literature Moments book, chapter 4th, the remaining story. So that let us start to read this story. But the king consulted his minister and ruled decisively. It's true, your father is the true murderer. He is dead. But somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. But the king consulted his minister. But the king discussed the minister and ruled decisively. And he ordered everybody, "It is true, your father is the true murderer." यह सत्य है कि तुम्हारे पिताजी क्या हैं? वास्तविक हत्यारे हैं. It is true that your father is the murderer of the burglar. He is dead. But your father is dead. लेकिन आपके पिता मर गए. But somebody must be punished in his place. लेकिन किसी व्यक्ति को उनके स्थान पर दंड दिया जाएगा. But somebody must be punished in his place. You have inherited everything. आप अपने पिता के सब कुछ चीज़ों के उत्तराधिकारी हैं. फ्रॉम द क्रिमिनल फादर्स ऑफ यू, फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर्स ऑफ यू, जो कि आपके पिता एक क्या हुए? क्रिमिनल हुए, अपराधी हुए. हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस. हिज रिचेज मीन्स धन, एज वेल एज हिज सिंस, उनके धन का और उनके पाप, इन दोनों के आप क्या हो गए? उत्तराधिकारी है. बिकॉज योर फादर इज द ट्रू मर्डरर ऑफ द बर्गलर. I knew at once, I knew immediately, even if I first set eyes on you, but that you were at the root of this horrible crime. You must die. You must die in place of your father. And he ordered a new stake to be made ready for his execution. As the servants served the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. When the merchant was ready for death, condemned for death, that moment his physical appearance was so very weak, his physical language was so very weak, so that he was not fit for the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. "What shall we do?" he said. When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to feed the stake. For this stake, the merchant was not fit. So that there suddenly idea came in his mind, only a fat man is enough to feed the stake. The servant immediately went all over the town looking for a man. So that the servants of the king were immediately at once went all over the town looking for the man who would feed the stake. तो राजा के सभी जो नौकर थे वो ऐसे आदमी को खोजने लगे जो कि वो स्टेक के लिए क्या हो? फिट हो. एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल, और उनकी आंखें क्या हुई? डिसाइपल के ऊपर पड़ी. हु हैड फैटेंड, हु वाज सो वेरी फैट, जो बहुत ही मोटा हो गया. हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, जो केले को खा करके, चावल को खा करके, घी को खा करके मोटा हो गया था. वह डिसाइपल बहुत ही हेल्दी हो गया था, फैटेंड हो गया था, मोटा हो गया था. व्हाट हैव आई डन रॉन्ग? आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड. That may be true, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place execution. What have I done wrong? Innocent, I am innocent, I am sannyasi, he cried. He means the disciple.
वह शिष्य चिल्लाते हुए बोला, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, मैंने तो कुछ गलत काम नहीं किया। आई एम इनोसेंट, मैं तो एकदम पाइयस हूँ, मैं निर्दोष हूँ, तो हमें आप लोग क्यों पकड़ रहे हैं? आई एम अ सन्यासी, आई एम सेलिबेसी, आई एम सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू, यह सत्य है। इट इज़ ट्रू दैट यू आर अ सन्यासी, बट इट इज़ द रॉयल डिक्रीज, लेकिन यह एक रॉयल मीन्स राजा का यह आर्डर है कि दैट वी शुड फाइंड अ मैन फाइट एनफ टू फिट द स्टेक, कि हमें ऐसे आदमी को खोजना है जो इस स्टेक के लायक हो, फिट हो। दे सेड, दे मीन्स द सर्वेंट सेड, नौकरों ने कहा, राजा के सैनिकों ने, एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसे दंड देने वाले स्थान पर लेकर गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड्स, दैट मोमेंट द डिसाइपल रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स। दैट मोमेंट, जब उसको मृत्यु दंड देने के लिए वहाँ ले जाया गया, तो डिसाइपल को अपने गुरु की याद आई। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का शहर। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, आप नहीं जानते हो कि ये लोग क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हर्ट, जब शिष्य मरने के लिए तैयार था, उस समय वह गुरु की आराधना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज, और उसने अपने हृदय से, मन से कहा कि उसके गुरु उसकी आवाज़ को सुने जहाँ कहीं भी हो। द गुरु वाज एवरीथिंग इन अ विजन, द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया। ही हैड मैजिक पावर, बिकॉज ही हैड अ मैजिक पावर, गुरु के पास वह मैजिक पावर थी, जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड ही द पास्ट, यानी गुरु जो थे प्रेजेंट फ्यूचर इन सब को क्या करते थे, देख लेते थे। बिकॉज ही हैड ए पावर ऑफ मैजिक स्ट्रेंथ, ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, गुरु अराइव्ड इमीडिएटली फॉर द लाइफ ऑफ हिज डिसाइपल, अपने शिष्य के जीवन को बचाने के लिए गुरु चल दिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इन टू सच ए स्क्रैप थ्रो लव ऑफ फूड, as soon as he arrived, as soon as the guru arrived, he scolded the disciple, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा। and told him, और उनसे बोले, something in a whisper, to speak in low voice, धीमी आवाज में उन्होंने बोला। then he went to the king and depressed, तब वो राजा के पास गया और and addressed, और बोला, him, O wisest of king, who is greater, the guru or the disciple। गुरु जाते हैं और राजा से कहते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, ओ बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, द गुरु आर द डिसाइपल, गुरु की शिष्य। इस चीज़ को गुरु ने उस राजा से पूछा। ऑफ कोर्स द किंग आंसर्ड, ऑफ कोर्स, एक्चुअली, इन फैक्ट, द गुरु जो होता है वह शिष्य से बड़ा होता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। वाई डू यू आस्क दिस काइंड क्वेश्चन, आप इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, वाई डू यू आस्क, देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो आप पहले मुझे इस स्टेक पे रखिए, क्योंकि आपने अभी कहा कि गुरु महान होते, गुरु सबसे बड़े होते। पुट माई डिसाइबल टू डेथ आफ्टर मी, इसके बाद आप मेरे शिष्य को मृत्युदंड दीजिएगा, तो पहले आप मुझे मृत्युदंड दीजिए।